everyone, this is Aman Mittal welcoming you all back to another session of Mosfet Current Affairs. The date of the day is 8th of January 2021 and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exam's perspective. So let us begin this particular session today, and to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, you get unlimited access to all the courses and educators who at present are teaching on an academy's platform. All the classes are live, which makes sure that environment of class is very much interactive and engaging. You also get live tests and quizzes along with the doubt clearing sessions at regular intervals to ensure करते हैं कि आपका periodic assessment होता रहे और कोई भी gray area ना बचे आपका during this preparation of yours of civil services examination. You can easily take an academy subscription by downloading an academy's learning app and installing it on a mobile phone. उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे सब्सक्रिप्शन को चूज करने के. One would be the plus subscription and second would be the iconic subscription. Plus subscription में you will be having multiple duration plans ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for any of the plan suiting your own demand and requirement, but the recommended plan here would be 1 year plan, which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by using my code NAMAN, and then the final price would be reduced to 44,550 rupees. Iconic अगर आप choose करते हैं तो it is slightly expensive as it has certain additional benefits like personal coach, mains question and answer writing practice and so on. इसीलिए इसकी जो एक साल की प्राइस है वो 69,500 रुपीज की है. इस पे भी आप 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं by using my code NAMAN. By using my code you not only get a discount of 10% but also my personal guidance and mentorship. Unacademy Combat जो एक पैन इंडिया लेवल पे प्रीलिम्स की सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू असेस योरसेल्फ एट द पैन इंडिया लेवल एंड आल्सो टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस. Let us directly come on to the articles of the day. आज के articles हमारे in-depth articles नहीं है, but definitely we have certain articles which definitely will provide you value to your content. Static content को enrich करेंगे आपके आज के existing articles. And more or most of the articles today are oriented from the prelims point of view. पहला आर्टिकल टॉक्स अबाउट द 301 रिपोर्ट जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं. कुछ ही टाइम पहले द आउटगोइंग यूएस एम्बेसडर फॉर इंडिया ही वाज रिटायरिंग, तो उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज करे थे कि इंडिया और यूएस में अभी भी क्या कंसर्न्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑफ ऑल द कंसर्न्स ही मेंशन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न वाज ट्रेड कंसर्न. तो ट्रेड कंसर्न के रिस्पेक्ट में मैंने आपको कुछ examples दिए थे like the issue of generalized system preferences. I gave you the issue of currency monitoring list. Now to those issues you can also add this particular issue, that is the 301 annual special report which is released by the USTR, which stands for United States Trade Representative. It is an agency founded in 1962. It consists of 200 committed professionals. ये कमिटेड प्रोफेशनल्स जो हैं इनका काम होता है टू लुक इनटू द ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज, नेगोशिएशंस विद द फॉरेन गवर्नमेंट, विद द फॉरेन कंट्रीज एंड आल्सो टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इफ दे आर एनी इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स. तो जो भी ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं ऑफ द यूएसए विद द अदर कंट्री, ये उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे सबमिट दिस एनुअल स्पेशल रिपोर्ट इन विच दे enlist certain countries under the list called as priority watch list and the priority list. ये दो लिस्ट ही प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म हमने यूएससीआईआरएफ के केस में देखा था, जहां पे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के केस में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट रिलीज करता है यूएस का यूएससीआईआरएफ. एंड हियर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड दिस लिस्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में उन कंट्रीज को प्लेस करता है यूएसटीआर जो बेसिकली ट्रेड नॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर रही हैं. दे आर नॉट इन द कंप्लायंस अकॉर्डिंग टू द यूएस. So they might be in compliance according to the international agreements, but not with the US or not with the trade agreements that the US has signed with a particular country. तो ऐसी जो भी discrepancies ये USTR का 200 committed professionals का जो ग्रुप है वो फाइंड करता है, तो वो उसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में प्लेस कर देता है.
India has a long history of around 25 years of being placed into the priority watch list because of the intellectual property rights issue. तो अभी तक मेजरली हम इस लिस्ट में प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द आईपी इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिस्ट इश्यूज इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. ओके, एज ऑफ नाउ यूएसटीआर ने अगेन इंडिया को हाईलाइट किया है. इट हैज नॉट पुट इंडिया इनटू द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. इट हैज ओनली हाईलाइटेड अ कंसर्न. द कंसर्न इज विद रिस्पेक्ट टू अ टैक्स पॉपुलरली कॉल्ड एज गूगल टैक्स. गूगल टैक्स के नाम से ये टैक्स जाना जाता है. इट इज बेसिकली द डिजिटल सर्विसेज टैक्स which for the very first time in India was announced in 2016 in the budget session of the 2016. तो 2016 में हमने एक 6% का इक्वलाइजेशनल लेवाई प्लेस किया on not only Google but Google like big giants who basically were fetching huge revenues, huge profits from the Indian market but were not sharing those revenues with the Indian tax authorities. तो हो क्या रहा था कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में ये अपने ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड कर रहे थे, एंड सिंस दोस ट्रांजैक्शंस वर बीइंग कंक्लूडेड इन दी लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस, तो वहां पे इंडिया को इंडियन टैक्स अथॉरिटीज का क्लेम नहीं बन पा रहा था. And these companies, by paying the lower taxes, used to skip the ambit of the Indian taxation or Indian tax laws. ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया ने फेस नहीं करी, ये प्रॉब्लम बाकी बहुत सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं. इनफैक्ट 2017 में आई थिंक, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, यूरोपियन यूनियन ने भी 3% का टैक्स लिवाई किया था ऑन दीज बिग टेक जायंट्स. And in 2016, according to one report, UK got the negligible tax from these kind of transactions because most of these transactions done by the big tech giant companies were concluded in Ireland, जहां पे taxation low है related to the UK jurisdictions. ओके, तो ये प्रॉब्लम इंडिया भी फेस कर रही है कि इंडिया में आप अपने ट्रांजैक्शंस कंक्लूड नहीं कर रहे हो व्हेन the most or the major share of the revenue is generating from or has been generated from the India as a state. तो सबसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका इंडिया से, लेकिन आप उसको कंक्लूड कर रहे हो एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन वाले एंटिटी में, एंड देन यू आर क्लियरली बाईपासिंग आवर इंडियन टैक्सेशन. तो इसके लिए 2016 में गवर्नमेंट ने गूगल टैक्स एक नाम का इक्वलाइजेशन लेवाई अप्लाई करा ऑफ 6%, बट दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एडवर्टाइजमेंट बिजनेस. कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट बिजनेस से कमा रहे हो वो आपको इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के साथ शेयर करना पड़ेगा. कितना शेयर करना पड़ेगा? 6% आपको शेयर करना पड़ेगा. लेटर ऑन इन 2020 में अगेन थ्रू द फाइनेंस बिल, this was expanded. The ambit of Google tax was expanded to even now include e-commerce within it. अब e-commerce को इसमें इंक्लूड कर लिया गया. तो किस टाइप का e-commerce इंक्लूड किया गया और पहले किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को इंक्लूड किया गया? ऑल दी नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनीज. तो जो भी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, जिनका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, all the companies which are non-resident, first point. Second, all the companies who do not have any permanent establishment in the Indian land, उन सारी कंपनीज पे ये टैक्सेशन अप्लाई किया गया. और इसको 2020 में ई कॉमर्स पे भी एक्सपैंड कर दिया गया. ई कॉमर्स को भी गूगल टैक्स के एम्बिट में ले लिया गया. गूगल टैक्स पे मैं बार बार एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इजी टू रिमेंबर है. आप इसको मेंस में गूगल टैक्स के नाम से भी यूज कर सकते हैं, और अगर प्रीलिम्स में गूगल टैक्स के नाम से कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल सर्विसेज टैक्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. गूगल टैक्स एक
मीडिया के टर्म्स में मीडिया ने इसको पॉपुलराइज किया है बाय कॉलिंग इट एज अ गूगल टैक्स, बिकॉज 2016 में जो मेजर रेवेन्यू आना था गवर्नमेंट को वो गूगल से ही आना था, एज इट एंजॉयज द मोनोपोली ओवर द एडवर्टाइजमेंट मार्केट नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो 2020 में गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस करे? पहला तो ई कॉमर्स को इंक्लूड कर लिया इक्वलाइजेशन लेवाई में, एंड सेकेंड गवर्नमेंट ने 2% का टैक्सेशन यहाँ पे लगाया ऑन द ई कॉमर्स फर्म्स who are non-resident and have no permanent establishment in India। 2% के साथ इन्होंने सरचार्ज भी प्लेस कर दिया। Now 2% of what? Revenue or profit? So it was 2% of revenue generated of the entire company from across the world or revenue generated from India. So revenue generated only from India। Please pay attention to these small nitty-gritties, small points, because यहाँ से confusion create easily किया जा सकता है while framing a prelims question। मेंस में भी आपको clarity होनी चाहिए, because only after that you will be in a position to use it in a more effective manner। Okay, fine। तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे क्या सिस्टम है? इंडिया वांट्स टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड। इंडिया वांट्स टू फैसिलिटेट द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू बोथ द नॉन रेसिडेंट कंपनीज एंड टू द रेसिडेंट कंपनीज। क्योंकि ये कंपनीज मोनोपोली एंजॉय करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज मेजर शेयर रेवेन्यू का अर्न करती हैं फ्रॉम द इंडिया, येट दे डू नॉट शेयर इट विद द इंडियन टैक्सेशन और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज। सो इट इज अ बिग लॉस फॉर अस, एंड ऑल्सो जो बाकी कंपनीज हैं उनको फेयर कंपटीशन नहीं प्रोवाइड हो पाता है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हमने ये टैक्सेशन सिस्टम को बेसिकली प्लेस करा, and to ensure fair competition। So it was an idea to provide reasonableness, जिसको USTR बोलता है that you are being discriminatory and unreasonable। तो इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है उस पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूं। फर्स्ट अलाउ मी टू कंक्लूड कि यूएसटीआर ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं। यूएसटीआर के हिसाब से ये जो गूगल टैक्स है या ईएल है, दैट इज इक्वलाइजेशनल लेवल, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो सिर्फ पहली बात एक आप ये समझिए कि सिर्फ इंडिया नहीं है जिसपे यूएसटीआर ने ये एलिगेशंस लगाए हैं। देयर आर कंट्रीज लाइक टर्की, इटली, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज who as of now are applying DST or digital service tax on the big tech giants, because ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एंड देयर आर मेनी मोर कंट्रीज हु आर प्लानिंग टू कम अप विद सच काइंड ऑफ DSTs or such kind of taxation systems so that they can also get the fair share of the revenue or the profit that these companies are earning। तो यूएसटीआर का मेन एलिगेशन है कि इस टैक्सेशन सिस्टम से यू बेसिकली आर फ्लाउटिंग द इंटरनेशनल टैक्स ऑब्लिगेशंस अंडर द OECD's BEPS। BEPS स्टैंड फॉर बेस एरोशन एंड प्राइस शिफ्टिंग। तो BEPS के हिसाब से विच कंट्री इज ऑथोराइज्ड टू टैक्स अ कंपनी विच इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो किस जुरिस्डिक्शन में अपना टैक्स पे करेगी, जहां से वो रेवेन्यू अर्न कर रही है या जहां की वो रेसिडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू OECD, अ कंपनी विल पे द टैक्स टू इट्स रेसिडेंट कंट्री, जहां पे वो स्टैब्लिश्ड है, जहां पे वो रजिस्टर्ड है। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू यूएसपीआर, इनकी खुद की रिपोर्ट के हिसाब से 119 ई कॉमर्स कंपनी है जो अफेक्ट हो रही है इंडिया के गूगल टैक्स के कारण, जिसमें से 73% कंपनीज आर ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी जो कंपनीज हैं वो कुछ फ्रांस की हैं, कुछ यूके की हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन 73% कंपनीज वो हैं जो यूएस की हैं, ई कॉमर्स कंपनीज विच आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द गूगल टैक्स। ओके, तो OECD के हिसाब से BEPS बेस एरोजन प्राइस शिफ्टिंग के हिसाब से ये टैक्सेशन यूएस का होना चाहिए, इंडिया का नहीं। लेकिन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मेनी अदर कंट्रीज, इवन द यूरोपियन यूनियन इज रेजिस्टिंग दिस फॉर्मूला, अ प्रिंसिपल ऑफ OECD ऑफ द टैक्सेशन इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे काफी टाइम से नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो 2000 आई थिंक
15 में, यस 2015 में OECD ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, G20 रिपोर्ट ऑफ BEPS on tackling tax challenges arising from the digitalization. So इस स्पेसिफिक रिपोर्ट में ये मेंशन था that the countries can come up with their own measures, certain measures to address these kind of tax challenges which are taking place because of the operation of multinational companies. तो उसमें से इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम गूगल टैक्स एक टूल क्रिएट करेंगे थ्रू द फाइनेंस बिल और थ्रू द अदर स्टैट्यूज और अदर मैकेनिज्म्स सो दैट वी कैन गेट द फेयर शेयर ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, तो यूएसटीआर ने सबसे पहले तो ये पॉइंट रेज करा है कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, अनरीजनेबल एंड अगेंस्ट द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन स्पेसिफिकली सेट बाय द ओईसीडीज बीईपीएस एग्रीमेंट। ओके, दूसरा फैक्ट यहाँ पे बताया है 73% अमेरिकन कंपनीज है तो इसलिए आप डिस्क्रिमिनेटरी हो। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया है इसने दैट यू आर बेसिकली टैक्सिंग द रेवेन्यू एंड नॉट द प्रॉफिट विच इज अगेन अनफेयर। आप अगर प्रॉफिट पे टैक्स कर रहे होते तो बात एक बार को समझ में आती, बट यू आर टैक्सिंग द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री विच इज टोटली अनफेयर। ये कुछ एलिगेशंस हैं यूएसटीआर के, बट यूएसटीआर has said that we are still evaluating the possibilities and the report. It has not concluded it as of now. तो हो सकता है यूएसटीआर इसको ड्रॉप कर दे, हो सकता है यूएसटीआर बिकॉज द फाइनल टर्म ऑफ द ट्रम्प इज सून गोना एंड, तो हो सकता है वो कुछ सैंक्शंस लैप कर दें। इसमें होता क्या है, बेसिकली प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में अगर किसी कंट्री को प्लेस किया जाता है, अकॉर्डिंगली वहां पे सैंक्शंस की लिस्ट होती है। जैसे आपने देखा है यूएससीआईआरएफ में भी था, करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट में भी था, तो ये सारी लिस्ट में सैंक्शंस होते हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली कैन एक्ट। इन केसेस में जनरली कैसे होता है, सैंक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, तो सैंक्शंस कैन बी like you can be compelled or pressurized to renegotiate the trade agreements with the country, that is between India and US in case of India, or compensatory taxation US place कर देगा on certain Indian goods ताकि जो इंडियन कंपनीज, जो यूएस कंपनीज को लॉस हुआ है ड्यू टू द लेवाई, इक्वलाइजेशनल लेवाई के कारण, वो कॉम्पनसेट कर सके यूएस बाय टैक्सिंग अनदर गुड्स और डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के यहाँ पे सैंक्शंस बेसिकली लगाए जाते हैं। ओके, इंडिया ने अपना यहाँ पे क्या स्टैंड रखा है तो इंडिया ने पहली बात बोली है हमारा टैक्सेशन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। वी अप्लाई इट टू ऑल द ई कॉमर्स कंपनीज who are non-resident and do not have any permanent establishment in India. We are trying to provide level playing field, ensure fair competition, and it is all within the ability of the Indian government to tax businesses. There is also no extraterritorial application of this tax. तो ये बात एकदम अंडरस्टूड है कि हम सिर्फ उस पे टैक्स कर रहे हैं जो इंडिया के थ्रू आपने रेवेन्यू जनरेट किया। इंडिया में आपने अपनी सर्विसेज रन करके जो रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ हम उस पे टैक्स कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसका नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन इसकी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव फीचर एज वेल। इसमें इस टैक्सेशन में कोई रेट्रोस्पेक्टिव फीचर भी नहीं है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन से दैट आप अनफेयर हैं, आप डिस्क्रिमिनेटरी हैं। ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमने इसको अप्लाई किया हो। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स इंडिया ने यहाँ पे प्लेस करे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात को ये समझिए दैट व्हाट शुड इंडिया डू। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट हो गया, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट हो गई, देन कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट हो गई। ऐसी मल्टीपल एजेंसीज हैं यूएस की which every day on a daily basis they prepare some or the other kind of report. So should we succumb to the pressure of US and lose our strategic sovereignty? Then the answer is no. आपने यहाँ पे फॉलो करनी है अपनी strategic autonomy, strategic sovereignty, and accordingly you have to act. This particular problem is not only India's problem. एक तो इंडिया सबसे ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करता है to these tech giants,
and these tech giants do not share the revenue with India. तो ये इंडिया की तो एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है, बिग प्रॉब्लम है इंडिया की, बट दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द यूरोपियन यूनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन ने 2016-17 के आसपास 3% टैक्सेशन लेवाई किया था, लेकिन it had to roll it back because certain members of the European Union backed out because of the pressure from the US। तो यूएस के प्रेशर के कारण क्योंकि उन्होंने बैकआउट कर लिया तो यूरोपियन यूनियन कुड नॉट रोल इट आउट। लेकिन इंडिया को बैकआउट नहीं करना है। इट्स टाइम फॉर इंडिया टू असर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड इंडिया इज well placed under the international obligations, under the domestic laws, to apply these kind of Google taxation systems or digital service taxes। इससे हम compensate कर रहे हैं हमारा loss which these companies are taking from us। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बिग टेक जायंट कंपनीज की, जो अभी तो हमने डिस्कस करना जिन पे चालू करा ही नहीं है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि एक ड्राफ्ट लॉ प्रिपेयर करा ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पे वो मीडिया हाउसेस के रेवेन्यू शेयर में भी अब कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स इन टाइम्स टू कम डेफिनेटली वुड बी डिस्कस्ड इन इंडिया एज वेल। सो अगर हम we will start to succumb under the pressure of the US, then the things won't happen according to our own will and according to our own interest। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको पता होना चाहिए कि 301 रिपोर्ट क्या है, तो 301 रिपोर्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेड डिस्क्रिपेंसीज व्हिच यूएस फाइंड्स विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स। अभी तक 301 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो इंडिया और यूएस के बीच में सर्टेन नहीं है, जिसके कारण इंडिया हमेशा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में खुद को देखता है। और अब ये एक नया इशू आया है गूगल टैक्स का या डिजिटल सर्विसेज टैक्स का, जिसके कारण ट्रेड रिलेशंस फर्दर हैम्पर हो रहे हैं ऑफ इंडिया एंड यूएस। ट्रेड रिलेशंस के अलावा यहाँ पे आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान पता है ऑलरेडी, दैट इज इंडियाज मूव टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। ऑल्दो इंडिया उसको India does not call it move towards protectionism, but definitely to an extent we have closed ourselves and have started to go for the indigenization। So that is a good thing in the longer term, but उसके again pros and cons दोनों हैं, तो वो चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको मेजर यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। Okay, so these were some of the things। अच्छा, तो लास्ट इशू है between India and USA, that is Russia। India's closeness with Russia is always upsets the US, and same is the case with Russia। India's closeness with the US always upsets the Russia। So again, I will say that India is today in that position, the geopolitics of the world today dictate India to assert its strategic sovereignty, strategic autonomy, rather succumbing to the pressures either from the Russia or USA। Fine। ओके, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का यही था जो आपको समझना था फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, एंड इसको मेंस में आपको सिर्फ रिपोर्ट 301 के नाम से यूज करना है। बिग टेक जायंट्स कंपनीज के खिलाफ हम क्या मेजर्स ले रहे हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, दैट हाउ इंडिया इज प्रोसीडिंग और कहां पे इंडिया फर्दर अपने स्टेप्स स्ट्रेंथन कर सकता है। एक तो आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखा था, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, एंड बाकी चीजें जैसे 301 में हमने गूगल टैक्सेशन लगाया, किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का लॉ आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जैसे ईयू ने ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस निकाली थी फॉर द सर्च रैंकिंग फॉर द अमेजोन एंड गूगल, उस तरीके की चीजें भी इंडिया कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टेक जायंट्स। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक इन्फोग्राफ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का है ये रिवीजन में आपको काफी हेल्प करेगा। की कंटेंशंस यहाँ पे मेंशन है, एंड यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है कि यूएस क्या एक्शन ले सकता है, तो इट कैन इम्पोज ड्यूटीज, रेस्ट्रिक्शंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉम्पनसेटरी बेसिकली वो टैक्सेशन लगाएगा ताकि जो उसका लॉस हुआ है वो किसी और गुड्स पे टैक्स करके इंडिया से वसूल कर ले, तो दैट इज द थिंग। फाइन, तो इसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ।
फाइन, ये आर्टिकल आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है। जब हमने वैक्सीन की बात करी थी तो यू वुड रिमेंबर कि हमने सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करा था, वैक्सीन डिलीवरी। वैक्सीन डिलीवरी में हमने सर्टेन इश्यूज, सर्टेन एरियाज पे डिस्कशन करा था, लाइक वैक्सीन हेजिटेंसी, ईगरनेस, सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज, इंटीग्रेशन ऑफ द बोथ एंड कॉस्ट एट द एंड। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे से पता नहीं कैसे स्किप हो गया, बट नाउ इज द टाइम दैट यू विल राइट इट। तो वैक्सीन हेजिटेंसी के नीचे सबसे नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, सिक्योरिटी का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ सप्लाई डिमांड मिसमैच, significant mismatch I'm talking about, there is significant mismatch between the supply and demand, तो security issue बहुत यहाँ पे important है, and this article talks about that कि जैसे बैलेट्स को, जो वोटिंग के टाइम पे द बैलेट्स आर प्रोटेक्टेड, इन सिमिलर फैशन द वैक्सीन बैलेट्स आर गोना बी प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और लेटर ऑन यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा जब गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देगी, एंड फाइजर या फाइजर मॉडर्ना ऐसी वैक्सीन को भी अप्रूवल प्रोवाइड कर देगी, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ब्लैक मार्केटिंग को भी यहाँ पे रोका जाए, होर्डिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज को रोका जाए। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आप वैक्सीन डिलीवरी में सबसे एंड में अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए अगर एक सेट ऑफ वैक्सीन भी ड्यू टू दी सिक्योरिटी लैप्सेस मिसप्लेस हो जाता है, या उसमें थेफ्ट के केसेस सामने आते हैं, सो दोस कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस विदाउट द प्रॉपर सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग सर्विलेंस डन बाय द हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ अथॉरिटीज। फाइन, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन द टाइम्स टू कम फॉर इंडिया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होगा जब प्राइवेट प्लेयर्स को आप इंक्लूड कर लेंगे। वो होगा वैसे इंडिया में इन द टाइम्स टू कम, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव टू टेक इनटू द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल। तो बस एक ये पॉइंट के लिए मैंने आर्टिकल सिलेक्ट करा है, बाकी इस आर्टिकल को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फाइन, ये भी एक एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आपको क्या पता होना चाहिए और एग्जांपल आप कैसे पिक कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली दो जगह पे होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट की, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस टू ऑपरेट। सेकंड प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। These SHGs, whatever product basically they manufacture or they develop, or even when they are asked to collaborate with the tribals, like it has been done in the Wan Dhan Yojana, तो हर जगह इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मार्केटिंग की करनी पड़ती है। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक दैट ऑफ अवेयरनेस, पेट्रियार्कल एटीट्यूड इन आवर कंट्री, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है इसके अलावा। लेकिन ये दो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं, एक क्रेडिट की और एक मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, क्या एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स, वो यहां आपको इस आर्टिकल से मिलता है। दैट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव मार्केटिंग सपोर्ट फैसिलिटी क्रिएट करी है फॉर दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू दी राजस्थानी एम्पोरियम्स। तो राजस्थान के ये स्टेट ओन एम्पोरियम्स हैं जहां पे अब एसएचजीज के गुड्स ब्रांड्स को भी मार्केट किया जाएगा, which is a huge development for these SHGs, because now they do not have to look for more finances, more value chains so that their products can be marketed. अब उनका market already set है, government will allow them to sell the products through these emporiums. Fine, so it is like enabling the SHGs to make their presence felt in the market. And SHGs को राजस्थान गवर्नमेंट शिफ्ट भी कर रहा है अब फ्रॉम द फार्म सेक्टर टू द नॉन फार्म सेक्टर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक कंसर्न है SHGs के रिस्पेक्ट में कि ये जहां पे अभी इन्वॉल्व है, जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो अनस्किल्ड वर्क है, लाइक पिकल मेकिंग, पापड़ मेकिंग। सो ये मेजोरिटी ऑफ द SHGs अभी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अगर आप इनकी स्किलिंग करते हैं तो यू कैन इंश्योर कि इनको आप
नॉन फार्म एक्टिविटीज में फर्दर आगे तक लेके जा सकते हैं। इसमें आप वन धन योजना का एक बहुत ही अच्छा मॉडल बता सकते हैं कि एसएचजीज को किस तरीके से कोलैबोरेट किया गया है विद दी वन धन योजना, जहां पे ट्राइबल प्रोडक्ट्स को थ्रू दी कोलैबोरेशन विद एसएचजीज मार्केटिंग करने में हेल्प करी जा रही है। तो एसएचजीज ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ minor forest produce of the tribals including the handicraft culture etc of tribals, तो उसको भी मार्केट किया जा रहा है यूजिंग दी एसएचजीज वन धन। आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, ओके जस्ट लीव इट, मुझे याद नहीं आ रहा है वो फ्रेज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर देख लूं मैं एक बार क्या था वो वन धन। Can anyone recall? या वन धन विकास समूह, वन धन विकास समूह। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एक अच्छा मॉडल है, बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप बता सकते हैं यहाँ पे। फाइन। और एक और हमने स्कीम पढ़ी थी इफ यू रिमेंबर, पीएमएफएमई, फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी एसएचजीज का गवर्नमेंट ने एनरोलमेंट किया है, कोलैबोरेशन इंश्योर किया है ताकि फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस में एसएचजीज एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए एसएस के लिए, और GS1, GS2, GS3, GS4 कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज एसएचजीज को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव and from the mains perspective as well. Prelims में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है on the disqualification of the legislators in our country। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लैक्यूना है, लूप होल है, जो आपको कन्वेंशनल बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको इस आर्टिकल से पता चलता है। पॉइंट नंबर 1, मेंस में whenever you will talk about electoral reforms, तो उसमें आप ये एक और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बता सकते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने काफी सारी डिस्कस करी हैं। इस डिस्कशन के अलावा मैंने एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ऑन द यूट्यूब, प्रोपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म, कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पेंडिंग है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, रिप्रेजेंटेटिव आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, 1950 में क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो आपको डिटेल में दे चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, करंट अफेयर्स से हमने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पिक करे थे, लाइक नोटा को अब और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिजेक्ट नोटा को इफेक्टिव बनाना है, बार ऑन द कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स, लाइफ टाइम बैन ऑन द कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स, देन एक्सटेंडिंग द वोटिंग राइट्स टू द एनआरआईज। तो ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने डिस्कस करे थे। इसमें आप एक और इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐड कर लेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है एज ऑफ नाउ, डिस्क्वालिफिकेशन हमारे देश में दो तरीके से हो सकता है, एक थ्रू द एंटी डिफेक्शन लॉ, फाइन, 10th शेड्यूल, एंड सेकेंड थ्रू द आरपीए एक्ट। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन ग्राउंड्स मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 102, जिसके थ्रू 102 एंड 190 आई थिंक, राइट, जिसके थ्रू लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन दी बाय आफ्टर द कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर। ओके, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है वो स्पीकर करता है। फाइन, दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन में अंतर क्या है ये समझिए। आरपीए के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है, अगर उसमें किसी लेजिस्लेटर का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इन दैट केस द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस फॉर द रिमेंडर टर्म ऑफ द असेंबली और ऑफ द पार्लियामेंट। अगर 5 साल का टर्म है ऑफ पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेटर पहले साल ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सपोज करिए एक एमपी है, वो पहले साल ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर द आरपीए एक्ट, ठीक है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, किसी में भी ले लीजिए। तो वो पर्टिकुलर एमपी डिस्क्वालीफाई होने के बाद दोबारा बाय इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में नहीं आ सकता है until and unless this 5-year term of that particular house और पार्लियामेंट ends। तो जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में ये प्रॉब्लम है कि अगर स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर द एंटी डिफेक्शन, जो आज के डेट में आपको रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, एंड ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी रिसेंट में हुआ है। जब लेजिस्लेटर्स पार्टी स्विच कर लेते हैं, तो लेजिस्लेटर्स ने पार्टी स्विच करी, स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सीट्स हो गई वेकेंट। अब होते हैं बाय इलेक्शंस, बाय पोज। उन बाय पोज में वो दूसरी पार्टी के टिकट से खड़े हो जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड दैट मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, दिस नीड्स टू बी डन अवे विद। क्योंकि इसका मिस यूज किया जा रहा है एज ऑफ नाउ इन इंडिया। कैसे मिस यूज किया जा रहा है? क्योंकि ओपनली एंटी डिफेक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक में यही हुआ, ओपन एंटी डिफेक्शन हुआ। अगर ये लॉ सेम होता, इमेजिन करिए लॉ अगर सेम होता, तो जिन लेजिस्लेटर्स ने डिफेक्ट किया और डिस्क्वालीफाई हुए, वो बाय इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं अनटिल एंड अनलेस 5 साल उस असेंबली के पूरे ना हो जाए, जैसा कि आरपीए में मेंशन्ड है। तो यहां पे एक पेटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो ये डिस्क्रिपेंसी अराइज करती है, हाईलाइट करती है, और इस डिस्क्रिपेंसी को खत्म करने की बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया है कि आप इस पे आगे हमें रिस्पॉन्ड करें। तो इलेक्शन कमीशन सेज कि आप इसकी डिस्क्रिपेंसी को यू शुड डू अवे विद, एंड disqualification should be for also the remainder term of that assembly or the parliament. Please try to understand this. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म है, क्योंकि now this has become a new norm in the politics of our country. सिर्फ 2 स्टेट्स यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इसके पहले अगर आप रिकॉल करेंगे तो महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, बहुत जगह ये चीज देखने को हमें मिली है ऑलरेडी। ठीक है। और आर्टिकल 172 यही है दैट द मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज को-टर्मिनस विद द टर्म ऑफ 5 इयर्स। ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पे डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 172। बाकी जो क्रक्स है वो आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं आया तो आप पूछिए, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि दोनों के डिस्क्वालिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि डिस्क्रिपेंसी क्या है, लूप होल क्या है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म में हमें क्या सजेस्ट करना है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मेंस में जब आप बात करोगे, यू विल से दैट द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द आरपीए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री needs to be done away with, and the membership of legislator needs to be made co-terminus with the tenure of the assembly or parliament. This is it. ये आपको मेंशन करना है मेंस में। प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट आता है, इजीली स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एडीएल इज को-टर्मिनस विद द मेंबरशिप ऑफ द और द टेन्योर ऑफ द असेंबली। आपको नहीं पता होगा, आप उसको राइट करके आ जाओगे। गेटिंग द पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। न्यूट्रिशन की हमने बहुत सारी बातें करी हैं, न्यूट्रिशन का हमने वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिस्कस करा है। यहाँ पे आपको गवर्नेंस लैप्सेस देखने को मिलते हैं। अगेन अ की टेक अवे, अगेन एन एग्जांपल, नथिंग एल्स। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे जाना ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ गवर्नेंस लैप्सेस हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि गवर्नेंस लैप्सेस क्या है, जिसके कारण न्यूट्रिशनल नीड्स हम फुलफिल नहीं कर पा रहे इन आवर कंट्री। तो कुछ गवर्नेंस लैप्सेस हमने पहले भी देखे थे कि विच वर विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस, कि कैसे फाइनेंसेस स्टैग्नेटेड है या डिक्लाइन हो रहे हैं, इवन इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ आवर कंट्री इंक्लूडिंग द पोषण अभियान। यहाँ पे आपको गवर्नेंस लैप्सेस, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 3 की कमिटीज जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी for the nutritional needs in a country. These committees are National Nutrition Council, Executive Committee of National Nutrition Mission, National Technical Board on Nutrition. क्या मुझे इस कमिटी के बारे में फर्दर जानने की जरूरत है? Your question, my answer is no. इस कमिटी के बारे में आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, because these are not politically
हाईलाइटेड कमिटी, इनका कोई भी एक इंपॉर्टेंट चेयरमैन नहीं है, इनका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में या इनका कंपोजिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दीज आर सर्टेन कमिटीज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड टू डील विद द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ कंट्री. प्रॉब्लम क्या है, ये 3 कमिटीज का मैंडेट था कि ये एक क्वार्टर में एटलीस्ट एक मीटिंग करेंगी, लेकिन सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक हैज hit India, these committees have not even once been convened. एक बार भी इनकी मीटिंग नहीं हुई है since the COVID-19 pandemic. तो ये क्लियरली गवर्नेंस लैप्स शो करता है, स्पेशली व्हेन देयर हैज बीन द रिवर्सल ऑफ गेन्स ऑफ द न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड अचीवमेंट्स इन अ कंट्री. गेटिंग अ पॉइंट. तो ये एक वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या ज्योति? सेइंग वॉइस प्रॉब्लम. प्लीज बताएं अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो. ब्रेक हो रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो. अकॉर्डिंगली आई विल चेंज द माइक देन. ओके. तो ये 3 कमिटीज के आपको डिटेल्स में नहीं जाना है. अगेन आई एम सेइंग ये 3 कमिटीज आपको याद रखनी है. आई एम नॉट सेइंग दैट आपको एक कमिटी भी याद रह गई, नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल तो याद रह जाएगी. अपेक्स बॉडी है ये अंडर द पोषण अभियान, राइट, जो इसका मेजरली काम है सुपरवाइज करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करना. तो ये एक कमिटी याद रह जाएगी, इसको यूज कर लीजिएगा. एंड likewise 2 other committees, important nutrition related committees, were not convened even for a single time since the advent of COVID-19 in our country, right? और इनका मेजर काम यही है, सुपरविजन का, गाइडेंस का, पॉलिसी फ्रेमवर्क का. तो जब इंडिया को सेंट्रल लेवल से गाइडेंस नहीं मिलेगा, फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा, सुपरविजन नहीं मिलेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि स्टेट्स एंड ग्रासरूट लेवल पे न्यूट्रिशनल लेवल्स हम अचीव कर पाएंगे? ओके. इंडिया फ्रांस आर स्पेशल पार्टनर्स, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा था when I was discussing the bilateral relations of India and France. Now this has again been reiterated by the ambassador of France, जिन्होंने clearly चाइना को बोला है that we have to be very robust and very clear against China's assertive attitude. तो फ्रांस ने clearly बोला है that we are supportive of the India's policy on Kashmir and China का assertive attitude we together will oppose and we together will tackle. Apart from that, फ्रांस के एम्बेसडर ने ये भी क्लियरली बोला है that as of now France is enjoying or France is having the relations with Pakistan which as of now are at a historic low. तो फ्रांस और पाकिस्तान के जो as of now relations है वो historic low पे है. तो दोनों हमारे एडवर्सरीज के अगेंस्ट में फ्रांस हमारे साथ खड़ा है still, and is the more important thing is it is vocal about these things even in the media and at the global platform. So this is why we call India and France as natural partners. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि नेशनल पार्टनर्स हमारे ज्यादा नहीं है. भूटान है एक, फ्रांस है, पहले रशिया था लेकिन अब रशिया भी नहीं है. तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे बस जो ग्रीन में है एक बार देख लेना, रीड कर लेना. बाकी क्रक्स मैं आपको बता चुका हूँ. ये क्रक्स को आप यूज करोगे एग्जामिनेशन में, वहां पे आप लिख सकते हो, इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि आप कैसे बोल रहे हो दैट इंडिया एंड फ्रांस आर नेचुरल पार्टनर्स. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच क्लियरली टेल अस दैट इंडिया एंड फ्रांस आर नेचुरल पार्टनर्स. इसके अलावा आपको पता है कोल्ड वॉर में भी फ्रांस वाज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ अस. इट हैज प्रोवाइडेड अस द एयर फ्लीट टेक्नोलॉजीज, इट हैज हेल्प्ड अस टू plant or to put the seed of the space technology in our country and so on, right? Judges should not be hypersensitive. It is about the contempt of court and few of the other reforms, or you can say loopholes that have been identified by the experts, judicial experts in the Indian judiciary, especially in the Supreme Court and its conduct.
तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी मैंने डिटेल डिस्कशन आपके साथ किया है, इसका भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा ऑन यूट्यूब। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिवाइज कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल एंड एक क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट इज बेसिकली नॉन कंप्लायंस। अगर आप कोई जुडिशरी ऑर्डर डिक्री फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे सिविल कंटेम्प्ट इनिशिएट हो सकता है owing to non-compliance of the orders, degree, judgment given out by the judiciary. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में तीन चीजें थी। एक थी स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। दूसरा था ऑब्स्ट्रक्शन एंड तीसरा था इंटरफेरेंस। तो ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस आर फाइन बिकॉज दे इन अ मैनर हैम्पर द फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट है, ये बहुत ही वेग टर्म है, इल डिफाइंड टर्म है, और सबसे ज्यादा इसी को स्लैप किया जाता है इन आवर कंट्री। तो इसके रिगार्ड्स में हमने देखा था क्रिटिसिज्म है। और यहाँ पे भी एन राम, द फॉर्मर एडिटर ऑफ द हिंदू, इन्होंने बोला है दैट स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, इट इज वेग, आर्बिट्री एंड हैज अ चिलिंग इफेक्ट। किस पे? आर्टिकल 19 पे। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, मैं सिर्फ आपको सब्सटैंशिएशन दे रहा हूं यहाँ पे, इस आर्टिकल में क्या बातें हुई हैं जो आप यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप बात करेंगे दैट यहाँ पे बोला गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुड बी स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स ने ये बोला है कि स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट को आप रिमूव कर दो फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, राइट? और मदन बी लोकुर, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला है कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं डूडा केस, डूडा शिवशंकर केस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशियल फंक्शनिंग में हैम्परिंग होगी, नॉट अदरवाइज, राइट? तो डूडा शिवशंकर केस को यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं, उसको फर्दर आप कॉन्क्रेटाइज कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस में। तो इस आर्टिकल को एक बस क्विक रीडिंग चाहिए आपकी, ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप रिवाइज कर सकें, ठीक है? लास्ट पॉइंट है जो इंडियन जजेस के रिस्पेक्ट में है, इंडियन जुडिशरी के रिस्पेक्ट में है ओवरऑल, एंड इट टॉक्स अबाउट द अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ द जजेस, इंटीग्रिटी ऑफ जजेस। ये कैसे आप एश्योर करते हो? तो एथिक्स में आप उसको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। ये कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चली आ रही है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे बैन लगाना चाहिए इधर, और देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड। अगर आप 62-65 की एज पे, जजेस की बात करूं तो 65 की एज पे अगर आप रिटायर करते हो तो देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स, और फिर उसके बाद आप पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पिक कर लो। एज ऑफ नाउ होता क्या है कि कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट पे। तो अगर एक इंडिविजुअल इतनी की पोजीशन पे रहता है लाइक दैट ऑफ सीजेआई, तो बहुत चांसेस ऐसे बनते हैं कि वो जो डिसीजन दे रहा है दैट इज नॉट फेयर एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बायसनेस इन द डिसीजन गिवन बाय दैट जज। और ये प्रूव हुआ क्योंकि हमारे एक फॉर्मर सीजेआई थे, उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा का रूट अडॉप्ट किया। ही वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो क्लियरली शो होता है दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ नेक्सस बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको दूर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम हो गई, इम्पार्शियल एटीट्यूड की प्रॉब्लम हो गई, इन सबको डील करने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड या अदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस की डिमांड है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट ऑल्सो इन द केस ऑफ जजेस एंड द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। क्योंकि गवर्नर की पोस्ट अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि या तो मिलिट्री ऑफिशियल्स को चली जाती है, या ब्यूरोक्रेट्स को चली जाती है, या फिर जजेस को चली जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। न्यू फ्राइट कॉरिडोर, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें
the inauguration has been done by the Prime Minister of a patch in the Western Dedicated Freight Corridor. तो Western Dedicated Freight Corridor कहां से कहां तक रन हो रहा है? हमने देखा था from दादरी to JNPT. तो इसका एक सेक्शन है जो इनॉग्रेट किया गया है एज ऑफ नाउ. फाइन. क्या ये सेक्शन आपको याद रखना है? आपको ये सेक्शन याद नहीं रखना है. You just have to understand that it is the world's first 1.5 kilometer long double stack long haul container train. तो डबल स्टैक कंटेनर है, जैसे डबल डेकर बसेस होती हैं तो उस टाइप से ये डबल स्टैक है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे आपको दिख रहा होगा अगर, तो एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा है. तो इससे फायदा क्या हुआ? द लोड बेयरिंग कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, over dimensional capacity has been increased. Now more number of goods can be facilitated from one place to the another place at the higher speed. Higher speed कितनी मेंटेन करी है यहाँ पे? 90 किलोमीटर पर आवर. प्रीवियसली कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर एवरेज इंडिया में स्पीड है of the transportation of freight in a country. Please recall all the points जो हमने डिस्कस करे थे, जो हमने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डिस्कस करा था. सारे पॉइंट्स आप प्लीज रिकॉल करिए. राइट. तो यहां से जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है, ये पहली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन है ऑफ 1.5 किलोमीटर जो इनॉग्रेट करी गई है न्यू रेवाड़ी से न्यू मदर स्टेशन अंडर दी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. तो ये आपको बस बेनिफिट में याद रखना है कि हम क्यों बना रहे हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. तो वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे फिर से मेंशन्ड है आपकी क्विक रिवीजन के लिए. क्रिएशन ऑफ जॉब, मोर इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट टू फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एंड चीपर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. राइट. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार आपकी क्विक रीडिंग इसको बनती है. जितना मैंने हाईलाइट किया है इस आर्टिकल में उसको एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आपका पूरा इशू और टॉपिक ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रिवाइज हो जाएगा. इसके साथ आपको दोबारा रिकॉल करना है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एक कृष्णापट्टनम और एक तुमकुरू इन कर्नाटका. यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा है. प्लग एंड प्ले मॉडल, बस ये साथ में और आप यूज कर लोगे, दैट विल बी फाइन. यहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट एक और मैंने आपको पॉइंट डिस्कस करा था कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को एनहांस कर रहे हैं एंड क्रिएट कर रहे हैं, उनकी लोड टेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. रादर आप यहाँ पे सागर माला को भी इंक्लूड करेंगे in the dedicated freight corridor and you will say that we are not only working on the domestic supply chains but we are here to integrate these domestic supply chains with the global value chains and global supply chains. तो सागर माला DFC together एक सिनर्जी में यहाँ पे काम कर रहे हैं so that we can integrate well with the global supply chains. इस आइडिया को आप यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे बस. राइट. बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. गुड इवनिंग नीरज, यू आर वेरी लेट आई थिंक. ओके, कोई बात नहीं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लास्ट थिंग, नॉर्थ ईस्ट लिंक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमने डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी है इसको हमें लिंक करना है विद नॉर्थ ईस्ट एंड देन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. तो वही बात आ गई घूम फिर के, दिस अ ट्रांजिट रूट. ट्रांजिट रूट क्या है? नॉर्थ ईस्ट, जिसको अभी हमें डेवलप करना है. तो उसको पहले आप लिंक करोगे सप्लाई चेन में अपने डोमेस्टिक में और फिर उसको इंटरनेशनल लिंक करोगे. काय में कनेक्ट करोगे? CLMV कंट्रीज में. प्लीज रिमेंबर CLMV रीजन, ये भी डिस्कस करा है हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में. ओके, अनदर एग्जांपल, FATF के जब भी प्लेनरी सेशन पास में आते हैं तो पाकिस्तान इस तरीके के एक्ट्स करता है. क्या किया है पाकिस्तान ने? वारंट, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया टू दी मसूद अजहर. मसूद अजहर कौन? जैश-ए-मोहम्मद का चीफ इन कमांडर. इसके पहले अभी किसको किया था? जाकिर और रहमान, LET ऑपरेटिव ऑफ 26/11 अटैक्स, उसको अरेस्ट किया था. तो ये जो न्यूज आप देखते हैं ये आप नेगेटिव एग्जांपल्स की तरह यूज करेंगे to show that Pakistan's efforts to combat terrorism, terror financing are basically a tool to bypass the scrutiny of FATF and not actually to comply with the FATF. तो ये इंडिया को हाईलाइट करना है
not only in front of FATF but also at the global platform, because now India is the non-permanent member of the UNSC for the next 2 years. और आज मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक भी शेयर करी है कि इंडिया ने 3 कमिटीज का मेंबर बनी है इंडिया, वो आप प्लीज आर्टिकल रीड करिए, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, 3 कमिटीज की वहां बात हुई है। तो एक तो सैंक्शंस कमेटी है और एक लीबिया की कमेटी है। तो इंडिया वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन कम्बैटिंग टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है इंडिया के पास कि ये सारे इश्यूज को वो हाईलाइट करे कि पाकिस्तान कैसे बाईपास करने की कोशिश करता है FATF के मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस को। तो FATF भी मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, अभी किया है 2 दिन पहले ही। तो अगर आपको चाहिए तो दोबारा कर देता हूँ, वरना प्लीज टेल मी। नहीं कर रहे वैसे तो डिस्कस हम, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है तो आपको याद हो गई, राइट? डू वी हैव अ ग्रिप ऑन डिसइंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल मैं आज पिक नहीं करने वाला था, लेकिन इसका जो फर्स्ट हाफ है ना, ये थोड़ा सा मुझे प्रोडक्टिव सा लगा। फेक न्यूज के ऊपर है ये बेसिकली आर्टिकल। तो फेक न्यूज के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई कॉन्क्रीट ना स्ट्रेटेजी है, ना मेजर्स है, ना कोई टूल है जो इंडिया ने पैन इंडिया लेवल पे अभी तक डेवलप करा है। ये प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए। ओके, प्रॉब्लम क्या है फेक न्यूज की इंडिया में? तो प्रॉब्लम है कि फेक न्यूज एज ऑफ नाउ इज वेरी सिंपल इन इंडिया। जो फेक न्यूज हम सर्कुलेट करते हैं, इट इज अ सिंपल फेक न्यूज विच कैन इजीली बी इंटरसेप्टेड एंड वी कैन डिसएंगेज पीपल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दिस हैज बिकम ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सर्कुलेट करी जा रही है इंडिया में। तो फेक न्यूज के रिस्पेक्ट में जब भी आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स जो ये आर्टिकल देता है, अच्छे पॉइंट्स हैं, वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। या इंटरनल सिक्योरिटी में जब मैंने आपको डील किया था फेक न्यूज, मैंने आपको वहां पे बताया था कि फेक न्यूज, हेट न्यूज, ये सारी चीजों के कारण क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्लीज मेंशन few of the points that in India the problem is of organized fake news and not the problem of fake news per se। तो ऑर्गेनाइज्ड नेचर होना फेक न्यूज का ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में फेक न्यूज का मेजर सोर्स है, या मेजर फेक न्यूज क्रिएट होती हैं ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड ऑफ द पॉलिटिक्स विच आर क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन हो, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। नाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव गॉट दिस टूल, a very important tool, जिसके थ्रू वो लोगों के ओपिनियन चेंज कर पा रहे हैं। तो they are now using this tool of fake news or disinformation, and so it is said that this problem is not gonna be dealt in the times to come, and this problem is definitely gonna be increased in the times to come। ये increase ही होनी है, ये reduce नहीं होनी है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इंटरेस्ट नजर आ गया है, चाहे वो रूलिंग हो, अपोजिशन हो, या नेशनल या रीजनल। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ये दीज आर अनविलिंग टू टेक द एक्शन। ये मैंने आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी में भी डिस्कस करा था दैट देखिए यूएस में इलेक्शंस हुए 2016 में, तब इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स ने, चाहे वो ट्विटर हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, इनफैक्ट फेसबुक हो, सबने फिल्टर्स क्रिएट कर लिए। But they are creating the filters only for certain circumstances and only for certain events, only for certain countries। वो चाहें तो उसको पैन ग्लोबल लेवल पे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट दे डोंट डू इट। इसी तरीके से जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे, तो जब जर्मनी की अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट हुई ऑन द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, तो उन्होंने वो फिल्टर्स अडॉप्ट कर दिए। Now they wait basically for the state governments, state authorities to reprimand them कि you need to come up with filters, because गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द अवेयरनेस जनरेशन। गवर्नमेंट सिर्फ अवेयरनेस जनरेशन कर सकती है कि डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन क्या उससे आप फेक न्यूज रोक पा रहे हो? आप उससे फेक न्यूज नहीं रोक पा रहे हो, बिकॉज फेक न्यूज अवेयरनेस के कारण ठीक है, एक हद तक होती है, बट अवेयर पीपल आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एज द पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग इट इन इंडिया। तो 4P की यहाँ पे बात करिए, ये 4P इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट P इज पावर, दैट इज पॉलिटिक्स।
why fake news is in existence in India and why is it going to increase in India? So because of power and politics, first thing. Second, because of profit. So even corporates and even the politicians use it for the profit. तो ये कंपनीज भी यूज कर सकती हैं फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट, फॉर पॉलिटिकल प्रॉफिट ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड बाय सर्टेन एंटिटीज, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इट कैन बी यूज्ड. So first P is power, second P is profit, third P is profound public disagreement. Profound public disagreement. Now what is it? जब आपको मास लेवल पे कोई ओपिनियन को फ्लक्चुएट करना है, why? For the power and profit. तो you will go for the profound public disagreements. And last, platform companies. Platform companies खुद नहीं चाहती हैं, they are not willing to take up this duty, responsibility to come up with certain filters, artificial intelligence, big data kind of tools which can easily enable them to check the menace of fake news or disinformation in India or anywhere else. कुछ प्रीवियस यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो आप एग्जाम्पल की तरह बता सकते हैं. जब टेररिज्म का केस हुआ तो यू केम अप विद क्राइस्ट चर्च इनिशिएटिव, you came up with the global information, what was it, yes, to counter terrorism, GIFCT, global internet forum to counter terrorism. ये 2017 में टेक जायंट कंपनीज ने वॉलंटरी बेसिस पे फॉर्म किया था ताकि हम यूनिक हैशेस क्रिएट करेंगे एंड आइडेंटिफाई द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स हु आर involved in the terrorist and related activities. तो आप क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं then the AI and using the AI and big data certain images, graphics, क्यों आप डेट नहीं प्रोवाइड कर सकते? बिकॉज देखिए कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा किस लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन फैली. दिल्ली राइट्स के केस में आपने देखा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तीन मेजर रिसेंट केस हैं जो आप यूज करेंगे जब भी आप फेक न्यूज की बात करेंगे. तो फेक न्यूज की बात करते वक्त ये तीन केस आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंडिया ने डिसइंफॉर्मेशन के कारण सफर करा है इन दीज थ्री केसेस. कोविड-19 में देयर वाज अ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय द पतंजलि, रामदेव बाबा, उसको बोल दिया गया कि ये सही वैक्सीन है, राइट? इवन द मीडिया हाउसेस सर्कुलेटेड इट विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स. टीआरपी का केस हमने देखा, वो भी फेक न्यूज बेसिकली से ही रिलेटेड है, हमने उसको लिंक किया था. इसी तरीके से कोविड-19 के टाइम पे जमात, तबलीगी जमात का जो केस हुआ था, उसको कैसे पुरानी पिक्चर्स को व्हाट्सएप पे डाल के सर्कुलेट किया गया. तो ये जो पुरानी पिक्चर्स हैं, GIFs हैं, वीडियोस हैं, अगर इनकी प्रॉपर डेटिंग करी जाए, अगर इनका एक डेटाबेस बनाया जाए, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर दीज बिग टेक जायंट्स टू आइडेंटिफाई द फेक न्यूज. They can then go for blocking the account of that individual, and if an individual is a repeated offender, तो इंडिया भी उसको एक अपने एक्ट्स के थ्रू बुक कर सकता है फाइनली रिपीटेड ऑफेंडर्स को, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज कई बार आप अननोइंगली भी फेक न्यूज को सर्कुलेट कर देते हैं. आपके पास व्हाट्सएप पे कोई न्यूज क्लिप आएगी, आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, आप सर्कुलेट कर देंगे. तो आपके पास पहले एक वार्निंग आनी चाहिए. तो वार्निंग से आप थोड़े से अवेयर होंगे कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे खुद वेरीफाई करना है, अदरवाइज माय अकाउंट वुड बी ब्लॉक्ड. So these are the nudging practices that needs to be developed both by the government and by the tech giants, right? तो ये डिसइंफॉर्मेशन का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, फेक न्यूज का. इसके अलावा इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई टूल नहीं है टू कम अप विद दी टू डील विद दी फेक न्यूज. ओके, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, अगेन फॉर योर रिवीजन. कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करा है, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आपको अगर टाइम है आपके पास, आपको लगता है कि मुझे और रिवीजन की जरूरत है, तो इस एडिटोरियल को आप पढ़ लीजिए. सारे वही पॉइंट्स हैं कि ये ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है. 1997 में आपको बता चुका हूँ हांगकांग में ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था. इंडिया में आज तक कोई भी ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस नहीं है. लेकिन अगर ये वायरस म्यूटेट करता है, अगर इसमें म्यूटेशन होता है, तो देन इट कैन come into humans, can be transmitted to humans and even spread from one human to human, as it is now being transmitted from one bird to another bird or from one bird to the another mammal, right?
तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस कर चुका हूं, बाकी इसमें मेंशन्ड है। एक है 2015 का नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान, तो ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। मुझे ऐसा याद है कि शायद मैंने ये आपको बताया नहीं था कि 2015 नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान भी है हमारे देश में कुछ। हालांकि मैंने इसमें जो होता है वो आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया था, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें क्या पॉइंट्स है, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। Basically, here also you try to talk about the strengthening the biosecurity of the poultry farm, disinfection of the affected areas, and then you talk here about the proper disposal of the dead birds or the carcasses of poultry animals and so on. Timely collection हो information का, dissemination हो with the other states. ये सारे इसमें गाइडलाइंस हैं, ऐसा कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंडिया में एक ऐसा इशू है जो अगेन डायरेक्टली विमेन एम्पावरमेंट को हिट करता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को हिट करता है, एंड इज अ ग्रेव हेल्थ इशू अमंग द विमेन इन इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को आप यूज करेंगे। पढ़ना है क्या आर्टिकल? आर्टिकल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी मत पढ़ना आर्टिकल। एक वर्ड नोट डाउन कर लो, पीरियड रूम्स। पीरियड रूम्स क्रिएटेड वेयर? इन द थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। कहां पे क्रिएट किया? स्लम एरिया में क्रिएट किया। थाने डिस्ट्रिक्ट के स्लम एरिया में पीरियड रूम्स क्रिएट करिए। बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग है पीरियड रूम। तो इंडिया में मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? तीन प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। सबसे पहली प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। अवेयरनेस की प्रॉब्लम मतलब क्या है? among the male counterpart of the Indian society, they are not very well aware about the health related implications and physical pain etc. that a woman has to bear during her menstrual cycle. सेकेंड अवेयरनेस की प्रॉब्लम है अमंग विमेन देमसेल्व्स। विमेन में क्या प्रॉब्लम है अवेयरनेस की? इसमें भी शायद मेंशन है, नहीं इसमें मेंशन नहीं है। 50% ऑफ द विमेन इन आवर कंट्री come to know about the menstrual cycle when they experience it for the first time. Now this is unique for Indian society. कि इंडिया में पहली बार एक लड़की को पता चलता है about the menstrual cycle when she experience it for the first time. उसके पहले उसको बताया ही नहीं जाता है कि menstrual cycle नाम की भी कोई चीज होती है। तो अवेयरनेस प्रॉब्लम एक तो ये हो गई, एक मेन के आउटलुक में हो गई, और तीसरी प्रॉब्लम हो गई अगेन विमेन और मेन दोनों में विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ, कि कैसे उसको आपको टेक केयर करना है, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू। तो ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है पहली इन दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन अ कंट्री। दूसरी प्रॉब्लम है इंडिया में फैसिलिटी की। फैसिलिटी से मेरा मतलब क्या है? फैसिलिटी, बाय द टर्म फैसिलिटी आई मीन सैनिटरी पैड्स। By the facility I mean proper access to the toilets, to the sanitary pads. सिर्फ 36% women इंडिया में सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं अकॉर्डिंग टू दी NFHS सर्वे 2015 एंड 16। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। तो पहली प्रॉब्लम अवेयरनेस की। तीन अवेयरनेस मैंने आपके साथ डिस्कस करी, मेन आउटलुक, विमेन अवेयरनेस एंड हेल्थ अवेयरनेस अमंग बोथ मेन एंड विमेन। दूसरी प्रॉब्लम है फैसिलिटी की। एक तो एक्सेस नहीं है टॉयलेट्स का, एक्सेस नहीं है टू दी सैनिटरी पैड्स, जिसके कारण वो क्लोथ्स का इस्तेमाल करती हैं। दे यूज कीप ऑन रिपीटिंग पीस ऑफ क्लोथ अगेन एंड अगेन, जिसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हेल्थ इंप्लीकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, लाइक दोज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन का लुक आफ्टर नहीं करते हैं तो। तीसरी प्रॉब्लम है इंडिया में सेफ डिस्पोजल की। सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी पैड्स। इसका सेफ डिस्पोजल बहुत रिक्वायर्ड है। एक, क्योंकि उससे इंफेक्शन सॉइल वाटर में ना जाए, कंटेमिनेट ना हो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें प्लास्टिक का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है विच इज नॉन डिग्रेडेबल। तो ये एनवायरमेंट को लॉन्गर रन के लिए हार्म करता है।
तो इसका सेफ डिस्पोजल बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसको एक टैबू माना जाता है हमारे देश में, तो इसका सेफ डिस्पोजल हम इंश्योर नहीं कर पाते। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब भी आप बात करें, ये 3 कंपोनेंट्स को एक फ्रेमवर्क दीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप इसको डील करिए। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, पूरा मैंने आपको ऑर्गेनाइज करके दे दिया कि एक है प्रॉब्लम अवेयरनेस की, दूसरी है फैसिलिटी की, और तीसरी है डिस्पोजल की। गेटिंग माय पॉइंट? डिस्पोजल में आपके पास 2 पॉइंट है, एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन due to the presence of plastic compounds in the sanitary pads, and the second problem is of the contamination of the groundwater and the soil or etc. right? तो ये बेसिक है यहाँ पे। अब पीरियड रूम क्या है? पीरियड रूम स्पेशल डेडिकेटेड फैसिलिटी क्रिएट करी, कहां करी? स्लम्स में करी, जहां सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। इसमें प्रॉपर एक टॉयलेट है, इसमें जेट्स हैं, डस्टबिन है। डस्टबिन क्यों जरूरी है? ये तीसरा कंपोनेंट के लिए, सेफ डिस्पोजल के लिए। तो यहाँ पे डस्टबिन प्रोवाइडेड है एंड बेसिक फैसिलिटीज दैट अ टॉयलेट हैज। एट व्हाट कॉस्ट? एट merely 45,000 rupees वन पीरियड रूम हैज बीन क्रिएटेड। तो क्या हम इसे इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली एट द रूरल स्केल, एट द रूरल लेवल एंड इन ऑल द स्लम्स इफ पॉसिबल ऑन द प्रायोरिटी बेसिस? देन यस, इसको आपको रिकमेंड करना है जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन हेल्थ हाइजीन की, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत अनलाइकली है, लेकिन डेफिनेटली विमेन हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, अर्बन हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। राइट? तो पीरियड रूम्स याद रखिए, थाने, स्लम्स, so as to provide menstrual hygiene in the country। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? एक सिंगल पॉइंट आपके लिए, पुराने मेजर्स हैं, 70,000 करोड़ पैकेज, 370 आर्टिकल, इसके अलावा मुझे स्कीम याद नहीं आ रही है, उड़ान स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीजें करी। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 28,000 रुपीज की स्कीम निकाली है। कैसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा? ब्लॉक लेवल पे होगा। राइट? बस एक छोटा सा मेजर है कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है। इसके अलावा आपको नहीं जाना है, डिटेलिंग में नहीं जानी है कि इसमें फर्दर कितने करोड़ किसको जाएंगे, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। Until and unless आप जम्मू कश्मीर का पीएससी दे रहे हैं, ठीक है? लास्ट आर्टिकल, फॉर योर ओन जनरल नॉलेज एज यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। ये कहीं नहीं पूछने वाला है यूपीएससी, ना प्री में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में। आपको बस थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट द एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, कि इस एग्जामिनेशन में कुछ कार्डर्स होते हैं, जिसमें से एक कार्डर होता है एगमट। एगमट में जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर लिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो जम्मू एंड कश्मीर कार्डर अलग से था। अब क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो उसको एगमट में इंक्लूड कर लिया गया है, बिकॉज एगमट में यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अपार्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, अरुणाचल, गोवा एंड मिजोरम, ये 3 स्टेट्स आते हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, नथिंग एल्स। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we will call today। Sir, my English is weak। There is no need to worry, नीरज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लिश वीक है, आपका मीडियम क्या है एग्जामिनेशन का? अगर इंग्लिश है तो ये कंसर्न है, तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क अपॉन। अगर आप यूपीएससी हिंदी मीडियम से दे रहे हैं और आप मुझे तब ये बात बोल रहे हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो एक्सेप्टेबल। तब मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आप कोशिश करिए चीजें समझने की, उसको फिर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी तो आप लिखेंगे क्या? ये मैं हर बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे मेरे साथ ये हुआ है कि सर इंग्लिश में आप मत पढ़ाइए, ऐसा वैसा। पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक जो स्पीकर होता है वो कम्युनिकेट उसी लैंग्वेज में करेगा जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें उसको लगता है कि वो बेस्ट डिलीवरी दे सकता है, बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है।
अब अगर आप प्रेशराइज करके मेरी मोड ऑफ डिलीवरी को चेंज करते हैं तो वो हम दोनों के लिए लॉस है, बिकॉज ना मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दैट वाज टू बी डिलीवर्ड, और ना आप उसको एग्जामिनेशन में फिर यूज कर पाओगे। तो इस पूरे जर्नी में जो चीज आपको चाहिए वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस को ढूंढिए, द बेस्ट रिलेवेंट कंटेंट। अगर आपको लगता है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो प्लीज जिस भी लैंग्वेज में कर रहा हूं कोशिश करिए समझने की। और वैसे भी आपको सी सेट क्वालिफाई करना है, मेंस में आपको मैंडेटरी इंग्लिश का पेपर लिखना है, उसमें आपको मार्क्स नहीं है, तो मैं ऐसी कोई हाईफाई इंग्लिश तो यहाँ पे यूज करता नहीं हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। इफ यू आर इफ यू थिंक दैट कंटेंट इज रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, अगर आपको लगता है कि कंटेंट जरूरी नहीं है तो यू कैन प्रोसीड विथ योर ओन अप्रोच, दैट इज नॉट अ केस दैट। थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ आपके डाउट्स के लिए, अगर आपको डाउट है तो, अदरवाइज आई विल कॉल इट अ डे। Okay. Thank you all for patient listening. Have a great day ahead.